Morning 7th standard. Today we start the fourth lesson, Maharashtra before the times of the Shivaji Maharaj. Now see, in this lesson what we are going to learn. At the beginning of the 7th century CE, most of the territory in the Maharashtra was under the control of the Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. The Mughals had entered the Khandesh. Mughals are entered the Khandesh. Their objective was to expand their power in the south. There were the settlement of Siddhi people who had come from the Africa. मतलब वो है ना, पीपल्स किधर से आए थे? अफ्रीका से आए गए. Along the coastline of the Konkan, the competition on the conflict amongst the Portuguese, British, the French and the Dutch. मतलब इधर सब लोगों के झगड़े थे. कौन कौन थे उसमें? Portuguese, then there is a French are there, then Dutch, there is a fight in between them. Who had come from the Europe was getting the instant during the period. There was the steep competition against them to capture the market for the trade. मतलब उनमें तीनों में ही झगड़े चालू थे क्योंकि मार्केट उनको क्या करना था? इंडिया का कैप्चर करना था. The Portuguese had already established their rule in the Goa and Vasai on the western coastline. मतलब पोर्तुगीज ने ऑलरेडी वसई और गोवा में उनके का साम्राज्य निर्माण किया था. The British, Dutch and the French had found an entry through the medium of the trading company by selling up the factories. मतलब उनको भी है ना, उन्होंने ना, मतलब उनको भी है ना इंडिया में है ना बिजनेस करने के लिए एक एंट्री चाहिए था और उन्होंने उसका कौन सा तरीका अपनाया? वो फैक्ट्रीज क्या करते थे? सेलिंग करते थे. नाउ all this power as assess the strength of the other power. मतलब एक दूसरे के ऊपर वो अपना पावर्स क्या करते थे? आजमाते थे. kept themselves safe and try to dominate as much possible. This conflict had created instability and insecurity in the Maharashtra. इसके कारण ही उधर क्या हुआ था? महाराष्ट्र में इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी निर्माण हुई थी. These different people from Europe who were called टोपकर, मतलब वो यूरोप से जो पीपल्स आए थे उनको टोपकर कहते थे. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट्यूमरी हेड गियर, मतलब उनके कॉस्ट्यूम के ऊपर उनको क्या करते थे? नाम देते थे. इट इज़ नेसेसरी टू गेट acquainted with the village, Munj, Kasba and Paragana to understand the nature of the settlement in the period, as also the officer that form a link between the ruler and the subject, and also the market and the craftsmen. Paragana was made up many villages. Generally headquarter of the Paragana was called the Kasba. मतलब उन्होंने जो हेडक्वार्टर बनाया था उसको नाम क्या दिया था? कस्बा. A village smaller than a Kasba was called the Munj. और जो विलेज कस्बा से छोटा होता था उसको क्या बोलते थे? मुंज बोलते थे. Let get acquainted in the brief with the village Kasba and Paragana respectively. Now village means Munj is there. Most of the people live in the village. A village was also called the Munj. The chief of the village was Patil. He used to try to bring the maximum land under the cultivation. When was there any dispute in the village, the Patil resolve the problems. मतलब जो मुंज का मतलब गांव का जो पाटिल होता है ना, वो क्या करता है? जब भी गांव में कुछ झगड़े होते हैं वो सॉल्व करता है. एंड ही मेंटेन द पीस इन द विलेज. और कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क. मतलब जो कुलकर्णी होते थे उनको वो क्या करते थे? काम में मदद करते थे. द कुलकर्णी kept the record of the revenue that was collected. There were the various artisans in the village. They had hereditary right regarding their occupation. The peasant gave the share of their agriculture produce to the assistant for the service they rendered the people community. This share was known as a baluta. और जो भी वो कुछ भी कमाते थे वो क्या करते थे? वो जो आसाइड करता था ना उस एग्रीकल्चर को, उसको वो क्या करते थे? बलूता के तौर पर वो थोड़ा सा अनाज दे देते थे. नाउ कस्बा.
Now, a kasbah was like a big village. It was usually the headquarter of the parangana मतलब पारंगाना का जो हेडक्वार्टर है वो कस्बा होता था. फॉर एग्जांपल, इंदापुर कस्बा ऑफ द इंदापुर पारंगाना, वाई कस्बा ऑफ द वाई पारंगाना वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ दोज पारंगाना. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, मतलब उधर का एग्रीकल्चर क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था. दिस वेयर स्किल आर्टिसन लाइक कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ ईटीसी इन द कस्बा. और कस्बा में बहुत बड़े बड़े आर्टिशियंस रहते थे. दिस वॉज यूजुअली इन द मार्केट मीन्स इन द पेट, मतलब पहले मार्केट को क्या बोलते थे, पेट बोलते थे. एडजेसेंट टू द कस्बा द शेड एंड महाजन वेयर वतनदार ऑफ द पेट, मतलब पेट के मतलब मार्केट के वतनदार कौन रहते थे, शेटे एंड महाजन. शेटे एंड महाजन. एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरीली हैव द पेट, मतलब हर एक विलेज को पेट होना जरूरी नहीं था. द सेलिंग ऑफ द पेट वॉज द जॉब ऑफ द शेटेज एंड महाजन, मतलब जो भी सामान बेचते थे वो किसका काम था, शेटे और महाजन का. फॉर दैट दे रिसीव सम लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसके बदले उनको सरकार से ज़मीन मिलती थे. एंड सम राइट फ्रॉम द विलेजर्स, और विलेजर्स से सम राइट मिलते थे. द महाजन मेंटेन द अकाउंटेंट ऑफ द पेट, और महाजन क्या करते थे, जो यह रहता है ना अकाउंटेंट, उसका पेट का अकाउंटेंट वो क्या करते थे, देखते थे. ओके, नाउ देयर इज अ what is a parangana. Many villagers together made the parangana, मतलब बहुत सारे villages इकट्ठा के क्या बन जाता है, parangana. But the number of the villages was not same in the all parangana, मतलब all parangana में same villages के numbers नहीं होते. कोई कोई parangana 5 गाँव का होता है तो कोई कोई 10 गाँव का होता है, like that. For example, the Pune parangana was the big parangana. It consists 290 villages, मतलब पुणे parangana ये बहुत बड़ा था और उसमें 290 विलेजेस क्या होते थे, इंक्लूड होते थे. देयर वेयर द 64 विलेजेस इन द चाकन पारंगाना. चाकन पारंगाना में 64 विलेज इंक्लूड होते थे. द शिरवल पारंगाना वॉज द स्मॉल, और शिरवल में क्या रहता था, कम पारंगाना, मतलब कम विलेजेस इंक्लूड हुए थे, इसलिए उसको स्मॉल पारंगाना बोलते हैं. इट हैड ओनली 40 विलेजेस, और शिरवल में 40 विलेजेस ही थे. द देशमुख एंड देशपांडे वेयर द वतनदार ऑफिसर ऑफ द पारंगाना, और जो वतनदार है ना वो कौन रहते थे, देशमुख और देशपांडे रहते थे पारंगाना के. द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ द पाटिल इन द पारंगाना, और देशमुख क्या थे, चीफ ऑफ द पाटिल इन द पारंगाना. द देशमुख डिड एट द पारंगाना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल. द देशपांडेज वॉज द चीफ ऑफ द ऑल कुलकर्नीज इन द पारंगाना, मतलब देशपांडे ये कुलकर्णी के जितने भी कुलकर्नीज है उसमें वो सबसे चीफ थे. द देशपांडे डिड एट द पारंगाना लेवल द वर्क ऑफ कुलकर्णी डिड एट द विलेज लेवल, मतलब जो कुलकर्णी विलेज लेवल पे काम करते थे वो पारंगाना पे देशपांडे करते थे. दिस वतनदार ऑफिसर वेयर लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और उनमें क्या होता था, दोनों में भी गवर्नमेंट और उनमें एक है ना समझौता हो जाता था. इन द केस ऑफ द एनिमीज इन्वेंशन और ड्रॉट, दिस वतनदार रिप्रेजेंट द ग्रीवेनेंस ऑफ द पीपल टू गवर्नमेंट. समटाइम दिस ऑफिसर मिसयूज देयर पावर, मतलब क्या करते थे, अगर ड्रॉट पड़ गया तो गवर्नमेंट को ये वतनदार सब देशपांडे सब बताते थे इतना इतना लोगों का नुकसान हुआ है. बट दे मिसयूज देयर पावर, मतलब जो देशपांडे और देशमुख थे और कुलकर्णी थे ये लोग क्या करते थे, उनका मिसयूज करते थे पावर का. दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल दैन वॉज ड्यू और डिड नॉट रिमिट द मनी सो कलेक्टेड द गवर्नमेंट इन द टाइम, मतलब गवर्नमेंट कम मनी उसको टैक्स लगाते थे लेकिन ये लोग क्या करते थे, ज़्यादा मनी लोगों से लेते थे. नाउ ऑन द सच ओकेशन द पीपल सफर हैरेसमेंट, और इसके कारण ही पीपल्स क्या होते थे, हैरेसमेंट का शिकार हो जाते थे. नाउ सी ऑल ऑफ यू, if it did not rain, crops would fail. The prices of the food grain rose. It becomes the difficult for the people to get the food grain and other things. There was no fodder for the cattle. Water becomes scarce. It becomes the difficult for the people to live in the village. Or sometime when there is a rainfall is not there, then what have become, the crops doesn't grow, and there is a problems of the water is there. People doesn't get the food grain for eating
purpose. There is no fodder for the cattle also, and there is a scared of the water is there. Then people's doesn't मतलब people cannot live in the village. They were forced to leave the village, और उनको क्या करता था, किया जाता था, फोर्स किया जाता था विलेज छोड़ने के लिए. A famine was great calamity for the people, और ये लोगों के लिए बहुत बड़ा calamities था. A great famine occurred in the Maharashtra in 1630. The people were greatly distressed due to the famine. It has been described in this word. People were ready to see the themselves for the piece of the भाकरी. मतलब लोग है ना एक भाकरी के टुकड़े के लिए मोहताज हुए थे. But there was nobody we buy them. There was several scarcity. There was a several scarcity of the food grain. Entire families were destroyed. Cattle from the animals die. Agriculture was devastated. The famine put on the end to the industry. All the financial transition comes to the standstill. People had to water to faraway region in the search of the livelihood. It was the great challenge to bring the back to the normally the devastated life of the people. मतलब है ना वो है ना फीमाइन 1630 में जो फीमाइन हुआ था उसके कारण लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था. एंड पीपल डजंट गेट द पीस ऑफ द भाकरीज, एंड पीपल देयर इज सो मच प्रॉब्लम्स आर कम इन द एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय. मतलब एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय. द एनिमल्स आर डाई, द पीपल्स ऑल्सो डाई, एंड देयर इज no other way to live the livelihood. Now it is great challenge to bring the back normally the devastated life of the people. मतलब लोगों का जो मतलब पूरा नुकसान हुआ था वो एक बार वापस लाना वो क्या हुआ था, बहुत ही मुश्किल हो गया था. The work of the Warkari movement. Now society was greatly influenced by the blind belief and ritual. People had become the fallaciated and inherent. They had lost all the invention. The condition of the common people was miserable. In such a circumstance, Sant Maharashtra invented to inspire the masses. मतलब उन्होंने क्या किया था, संत लोगों ने महाराष्ट्र के पीपल्स को अच्छा मैसेज दिया था, how to live and how to survive from this one. They give so much information about the how to live in the society. The Sant give information to the peoples. In the Maharashtra tradition of the Sant, which began with the Sant Jnaneshwar and Sant Namdev, was carried on by Sant coming from the various सत्र ऑफ द सोसाइटी. मतलब सबसे पहले संत थे ज्ञानेश्वर और उनके बाद नामदेव, एंड सो मेनी संतस आर कम इन द सोसाइटी. पीपल फ्रॉम द ऑल सत्र ऑफ द सोसाइटी वेयर पार्ट ऑफ द संत ट्रेडिशन. और सब लोग वो संत का कहना क्या करते थे, मानते थे. फॉर एग्जांपल संत चौका मेळा, संत गोरोबा, संत है ना, संत सावता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद, ETC, संत चोकोबा, वाइफ संत सायराबाई, देन सिस्टर संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई. दिस ऑल आर द संतस आर देयर. नाउ वी लर्न अबाउट देम. सम कानापात्र, संत कानोपात्र, संत बहिनाबाई. Then other women were also the common of them. Pandharpur was the center of the Sant movement. Vittal was the object of their worship. मतलब विट्ठल ये क्या थे, उनके वर्शिप का एक ऑब्जेक्ट था. नाउ द पंढरपुर बिकम द पिलग्रिम.
Pandharpur become the pilgrims for the Warkari and devotion. This equally was propagated through the bhajans, kirtan and unity meals. Now Sant Namdev, what is the work of the Sant Namdev? He was the great Sant of the Warkari movement. He was the skill organizer. He performed the excellent kirtan as well as he awake the sense of the equal in the men and women. मतलब उन्होंने कभी ना वुमेन्स और मेन में कभी डिफरेंशिएट नहीं किया. दे गिव सो मच इम्पोर्टेंट टू बोथ ऑफ देम. नाउ एंड they bring means they sing the kirtan, and from that kirtan they give the important message to the peoples. Now they not follow the caste system. His people plays the नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी. मतलब ये कीर्तनाच्या रंगी आपण नाचूया आणि पूर्ण जगात ज्ञानदीप लावूया. हिज अभंग composition are well known. Many sant as well as common people were influenced by his technique. He went up to the Punjab propagating his thought. मतलब वो पंजाबी गए थे उनके थॉट्स लोगों को बताने के लिए. नाउ हिज कंपोजिशन आर इंक्लूड इन द गुरु ग्रंथ साहिब. उनके कंपोजिशन उनके जो सीख है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या है लिखित स्वरूप में है ऑफ द सिख. ही प्रोपोगेटेड द मैसेज ऑफ द भागवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स. ही बिल्ड द मेमोरीज टू द संत चौका मेड़ा एट अ पंढरपुर. हिज वर्क इज अनफॉरगेटेबल. मतलब नामदेव महाराज थे उनके जो वर्स है वो अनफॉरगेटेबल थे. नाउ टुडे वी लर्न ओनली दिस मच. योर होमवर्क इज देयर. यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संत नामदेव एंड व्हाट इज द सिचुएशन इज देयर बिफोर द शिवाजी Maharaj in the Maharashtra. Write down that all the two short notes and send me on my mobile number. Thank you all of you.